देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए गो गैस के मालिक नितिन खारा। लोकमत के कार्यक्रम में सम्मानित हुए नितिन खारा बिहार और महाराष्ट्र के राज्यपालों ने किया सम्मानित। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई उद्योग और समाज के लिए प्रेरणा है। समय समय पर यहाँ से ऐतिहासिक कार्य और समाज के प्रति समर्पित भावनाओं की तस्वीर देखने के लिए मिलती है। लोकमत प्रेसिडेंट विजय दर्डा द्वारा आयोजित महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के अलावा महाराष्ट्र के महामहिम सीपी राधाकृष्णन मंच पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का मकसद और उद्देश्य यही था कि पहले इंसान बनो फिर पहचान बनाओ। सारे धर्म को एक साथ जोड़कर चलने वाले गौतम बुद्ध और महावीर इस कार्यक्रम के आकर्षण रहे। उनके सिद्धांतवादी जीवन को दर्शाया गया, समाज के प्रति सद्भावना और एकजुटता का संदेश दिया गया। लोकमत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रति समर्पित उन तमाम उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें गो गैस के मालिक नितिन खारा को बिहार के राज्यपाल और महाराष्ट्र के महामहिम द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नितिन खारा समाज के प्रति समर्पित और सद्भावना के साथ इंसानियत को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि उन्हें महाराष्ट्र की सम्मानित मीडिया व संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। देश और समाज के प्रति जो सद्भावना और आस्था रखते हैं, उसी को आज सम्मान के रूप में उन्हें समर्पित किया गया है। Dialogue organized by Sri Vijayadara ji and Acharya Lokesh Muni ji, and I congratulate both of them for their organizations for this timely and extremely relevant initiative. So we all know the God is one. Then why the differences are coming? It is only because one is not recognizing the other way of worshipping. So we worship the way it is being worshipped by others, then it is the end of the story, the harmony is coming, everything is coming. See, the river is starting from the ice glaciers of Himalayas, or it may be from the plain. But all the rivers, wherever it is floating, in which continent it is running, finally it has to come to an end only at the sea. Whatever the worship we made, the bhakti, the pratana, all is for only one thing, that the human society should have faith in dharma. No one has the right to harm the other. That is our ultimately the aim of worshipping the God, and all religions are equal, all religions are the same at the holy feet of the Almighty. So we should have our own right how to worship the God, that everyone has to respect it, and we should not interfere in the way the others are worshipping. And I am especially happy that Honorable Governor of Bihar, Sri Arif Mohammed Ganji, is in our midst, and he is one of the tallest and finest intellectuals and an orator par excellence in our country. After listening to him, I don't think that we can contribute anything more to the dialogue. The way he has delivered his speech from the bottom of the heart, it is wonderful. All the distinguished personalities in this August Assembly and the religious leaders on the dais, according to me, are the conscious keepers of society and the nation. We need your guidance in our march to become a developed nation. A developed nation cannot be built unless there is a harmony and peace in the society. There could not have been more appropriate occasion to hold this interfaith dialogue than today, a day ahead of Mahavir Jayanti, the birth anniversary of Lord Mahavir. In a world increasingly grappling with caste, communal and ethnic fragmentation, intolerance and unrest, Lord Mahavir's message of compassion, ethical contact and tolerance becomes all the more relevant. Whatever our elders have said, the
That is, time and time again it is proved that they have not said anything wrong, but they have said everything for the globe forever. The land of Maharashtra has always shown the way forward. Saints of Maharashtra, Saint Janeshwara, Namdev, Chandra Swamiji, Eknath and Tukaram stood up for the common people and challenged orthodoxy. They brought the knowledge and wisdom of Vedanta to the common man. Any high philosophy should not be stagnant at the top level. It should penetrate the common man. That is where the society, the uneducated, illiterate, who is working only for his livelihood every day, he also should understand the essence of the philosophy. That is what is important, and all our saintly people are doing everything so that the common man also understand the dharma. The concept of interfaith dialogue is not a new one. It has existed throughout history as people from different religious backgrounds have sought to understand one another, build bridges and promote peace. Interfaith dialogue has the ability to bridge the divides, dismantle prejudice and foster a deeper understanding of our shared humanity. Swami Vivekananda had addressed one such interfaith dialogue in the form of World Parliament of Religions held in Chicago in the year 1893. The message of brotherhood of humanity he gave had touched the millions of people across the world, and he said, so we certainly need to revisit the message of Swami Vivekananda and अनेकांतवाद है क्या? और इसमें मुझे लगता है कि आत्मा का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत ये इसकी गुंजाइश ही नहीं छो। एक बार अगर मुझे यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, ना मैं कभी उससे अलग होता हूं ना वो मुझसे अलग। तो जब हर कोई इस हॉल में बैठा हुआ मेरा विस्तार है, तो ये कैसे संभव है कि मैं अगर किसी को पीड़ा दूंगा तो वो जो आत्मा का कनेक्शन है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको तार भी नजर नहीं आ रहा, आप यहीं से फोन करके मोबाइल दबा के और अमेरिका बात कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन तो है ना। तो वो जो आत्मा का कनेक्शन है, अगर मैं किसी को पीड़ा पहुंचाऊंगा तो वो पलट के मेरे ऊपर आएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट। एक बार मुझे मैं कैसे किसी के पैर पर पैर रखूंगा? अगर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं केवल तकलीफ पहुंचाना नहीं, तकलीफ पहुंचाने का सोचूंगा, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे सफर करने पड़ेंगे। एक और छोटा सा आपको सुना दो। भगवान राम अपने बैठे हुए हैं अपने अयोध्या में लंका जीतने के। एक कुत्ता आया वहां, उसने कहा कि फला किसी ने मुझे अकारण ही मारा। अपना मुकदमा पेश किया, इंक्वायरी कराई गई, सही। तो भगवान राम ने उससे पूछा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही, बताओ क्या सजा दे। कहा वो मंदिर का महंत है, उसे मुख्य महंत बना दो। तो लोग हंसे कि भाई तुम सजा दिलाने आए हो या इसकी पदोन्नति कराने आए हो? उसने कहा कि मैं तो बेशक इस जन्म में मैं कुत्ते की योनि में जन्म लिया है, लेकिन मेरे पुण्य इतने हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्मों का भी पता है। तुम इंसान हो, तुम्हें नहीं पता। मैं भी पिछले जन्म में मुख्य महंत था,
और मुख्य महंत होने के कारण कोई जवाबदारी नहीं थी, और जवाबदारी नहीं थी तो मैंने उल्टे सीधे काम किए जिसके कारण मैं ये भोग रहा। भाई हम सब एक दूसरे से, पूरी दुनिया और इंसान नहीं अकेले। ये मैं इसे इस तरह कर, मैं मतलब जो हमारे ये चिंतक थे, जो हमारे तीर्थंकर थे, जो हमारे सिद्ध पुरुष थे, जो हमारी महान आत्माएं हैं, उन्होंने जो ये सिद्धांत दिए हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक शब्द का प्रयोग होता अपौरुष, लेकिन भारत में कभी किसी ने ये क्लेम नहीं किया, शुरू से लेके आप किसी भी जिनके संदेश ने हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डाला, हमें प्रेरित किया, वो हमारे प्रेरणा पुरुष है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे विचार, उन्होंने एक सार्वभौमिक सिद्धांत को तलाश किया और हमें बताया। हम उसे नाम देना चाहें, हम नाम दे सकते हैं, हमने दिया है नाम ताकि उसकी पहचान हो सके। लेकिन कोई भी चीज मैं क्या हूं, ये अभी मैंने आपको सुनाया कि शरीर तो हमारी पहचान बन नहीं सकता, तो जिस घर में जन्म लिया है हमने, वो कैसे हमारी पहचान बनेगा? पहचान बनेगा इंसान किन विचारों में विश्वास करता है और उसका आचरण क्या है, ये हमारी पहचान बनेगी। और जिस दिन हम उन विचारों के मुताबिक आचरण करने लगेंगे, मैं आखिर में एक बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े नहीं, सारे सूफी संप्रदाय उन्हें शेख अकबर कहते हैं, इब्ने अरबी। उसने कहा, उसने एक सूत्र दिया, तुम्हारी जो भी आस्था और श्रद्धा का तरीका है अभिव्यक्ति देने का, कभी उसकी तारीफ मत कर। उसने ये नहीं कहा कभी तारीफ नहीं करना, उसने कहा डू नॉट प्रेज योर फेथ एक्सक्लूसिव, केवल अपनी अभिव्यक्ति का जो तरीका है, केवल उसकी अकेले तारीफ मत करना। तारीफ करनी है तो सबकी करो, खुद ब खुद। इसकी मैं मानता हूं कि हर किसी को, देखिए अगर हम एक घर के सब अलग अलग, जो एक तो ये कि हमने रिलीजन के ट्रांसलेशन के तौर पे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, ये बिल्कुल गलत। धर्म कुछ और चीज है और रिलीजन कुछ और चीज है, लेकिन हम उसी को ही माने लेते हैं थोड़ी देर। एक ही परिवार के, धर्म तो छोड़ दीजिए, परंपरा तो छोड़ दीजिए, एक परिवार में 5-6 लोग हैं, 5-6 कागज उनके हाथ में दे दीजिए, वो तो एक ही तरीके से अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं, एक ही चीज वो बचपन से सुनते आए। उनको एक एक कागज दे दीजिए, उनसे कहिए कि तुम्हारा विचार क्या है परमात्मा के बारे में या जीवन के, आस्था के बारे में जरा 10 लाइनें लिख दो। एक परिवार के लोगों की भी जब वो लिखेंगे तो 10 लाइनें अलग अलग होंगी। तो एक परिवार की सोच को तो एक कर नहीं सकते हम सबको एक करने के लिए चलें। एकता जहां पहले से ही समानता हो, वहां एकता नहीं होती है। एकता तो तब होती है जब अलग अलग रंग के फूल हों, उनको गुलदस्ता तब बनता है।